Okay, so let's continue solving this question. So इसका approach क्या है basically? What is the approach for this question? Now you see PQR का triangle का एक angle 90 degree है, ठीक है? One of the angles is 90 degree. What does it mean? If one of the angles is 90, then the sum of the other two angles should also be 90. Why? Because we know that P plus Q plus R तीनों एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है? अगर R 90 हो गया तो obviously P plus Q should also be equal to 90. But remember, we are interested in tan P by 2 and Q by 2. तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो this becomes 5/4, ठीक है? And moreover, tan P by 2 plus tan Q by 2 है ना, इनका सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b by a, ठीक है? और इनका प्रोडक्ट tan P by 2 into tan Q by 2 is c upon a, ठीक है? Now you see this question is now very much similar to this one, right? अपने पास tan a plus tan b है और tan a into tan b है. We obviously gonna start with tan a plus b. Tan a plus b. Why a plus b? And moreover, you see, if you start with tan a plus b, माने this, if you apply tan on both sides, RHS में देखो tan 1 हो जाएगा, right? तो it will be very much similar to this question, ठीक है? यहाँ angles में 30-50, उनका directly sum 45 होगा. It was easier, but here we had to identify कि first उनका sum हो रहा है 45 करके, ठीक है? That's why this question was tricky. So what did we do? Now what do? We apply tan on both sides here. यहाँ apply करेंगे tan on both sides. तो ये बनेगा tan P by 2 plus Q by 2 is tan pi by 4. ये तो 1 है और यहाँ tan A plus B वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सब्स्टिट्यूट करो, ultimately you should be able to get this result. ठीक है? So please try this on your own. Let's try next question. Question number 10. If alpha is a root of 25 cos square x plus 5 cos x minus 12 is equal to 0 and alpha lies in the interval pi by 2 to pi, then sin 2 alpha is equal to ठीक है? Now remember this question could have been sin 2 alpha or cos 2 alpha or tan 2 alpha. It could be any one of this, है ना? अच्छा, it could have been sin 3 alpha, cos 3 alpha, tan 3 alpha as well, right? अच्छा, so basically क्या है कि sin 2 alpha की वैल्यू निकालनी है, but we know that sin 2 alpha is 2 sin alpha cos alpha, ठीक है? माने अगर आपके पास sin alpha की वैल्यू और cos alpha की वैल्यू होता तो आप ये फाइंड कर सकते हैं. लेकिन he did give us कि alpha is root of this equation. alpha इसका रूट है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो भी वैल्यूज मिलेंगे, और आपने नोटिस किया ये cos के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो आप एक काम कर सकते हो, लेट cos x be equal to y. तो सॉल्व फॉर y हियर. 25y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 12 0. तो रूट क्या है इसके? सो y के माने कैसे फैक्टराइजेशन से किया? पापा मेथड. ओके, सो y के दो वैल्यूज आएंगे. व्हाट आर दोस? -4/5 3/5. हाँ, now you see, but लेकिन remember these are not actually values of y, these are actually values of cos x, isn't it? Therefore cos x की वैल्यू है. अच्छा, अब बताओ cos x के दो वैल्यूज हैं, दो रूट्स हैं, दोनों भी पॉसिबल है, ठीक है? तो इसमें से cos अल्फा कौन रहेगा? ये वाला रहेगा कि ये वाला? माइनस वाला, क्योंकि एग्जैक्टली, वेरी गुड. ये देखो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब cos अल्फा हैज टू बी नेगेटिव. तो देयरफॉर -4/5 इज cos अल्फा. अच्छा, तो अकॉर्डिंगली sin अल्फा क्या होना चाहिए?
प्लस 3/5 की माइनस 3/5 प्लस 3/5 क्योंकि अगेन सेकंड कॉम्प्लेक्स, बस इसमें वैल्यूज डालो, दैट्स फॉर्मेलिटी. 2 into sin is 3/5 and cos is minus 4/5. Minus 24/25 is sin 2 alpha. अगर cos 2 alpha पूछा गया है तो भी फाइंड कर सकते हैं. एनी ऑफ sin डबल एंगल या ट्रिपल एंगल. ओके, सो दिस वाज इंटरेस्टिंग. cos alpha के दो वैल्यूज थे cos x के, उनमें से एक ही वैल्यू cos alpha होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरवल, राइट. Okay, let's look at question number 11. If tan A and tan B are roots of 3x square minus 10x minus 25 is equal to 0. इसके रूट्स है tan A tan B, ठीक है. Then the value of 3 sin square a plus b minus 10 sin a plus b cos a plus b minus 25 cos square a plus b is equal to. ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ओके, ये देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टू बी एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना. तो किसकी जरूरत है, व्हाट डू वी नीड फर्स्ट? फर्स्ट ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड sin a plus b एंड जैसे उनके वैल्यूज मिल गए, इसमें डाल दो ये एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. लेकिन क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास? व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? डू वी हैव वैल्यूज ऑफ sin a plus b cos a plus b डायरेक्टली? एब्सोल्युटली नॉट. बट वी डू नो कि tan a और tan b जो है वो इसके वैल्यूज है अपने पास. अच्छा, ठीक है, तो पहले tan a प्लस tan b के वैल्यूज निकालेंगे. उनका सम इज 10/3 माइनस b बाय a, और उनका प्रोडक्ट वो माइनस 25/. अच्छा, अपने पास tan a प्लस tan b है और tan a इंटू tan b है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? Exactly. You see, we have discussed two questions already. देखो, tan a plus tan b है. अच्छा, अगर यहाँ tan a minus tan b होता, probably we would have formed tan a minus b. ठीक है? So, but we know that tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. ये plus 25/3 हो जाएगा. ठीक है? तो ये 10/28. Is this what we get? है ना? अच्छा, so ये 5/14. So this is the value of tan a plus b. ये tan a plus b का वैल्यू है, ठीक है. अच्छा, आपने नोटिस किया tan पॉजिटिव है, that means sin और cos could be positive और negative, we do not know. तो कौन सा कंसीडर करें? अब तो कोई इंटरवल तो नहीं, कोई कहीं इंटरवल दे रखा है क्या? नहीं. रिमेंबर, अगर इंटरवल नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना. यू सी, ओनली व्हेन इंटरवल इज मेंशन्ड यू यूज इंटरवल. अगर इंटरवल नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप नॉर्मली करोगे ना. जस्ट सॉल्व दिस नॉर्मली. कि tan की वैल्यू है 5/14, तो ये कितना होना चाहिए? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 25 प्लस 196 कितना हो रहा है? ये 221. इज इट? दिस इज कमिंग आउट रूट 221. अच्छा, बस इसमें डालना है अल्टीमेटली. सो देयरफॉर sin a plus b is opposite upon hypotenuse root 221. अच्छा, what about cos a plus b? Adjacent upon hypotenuse. You just have to substitute the values here, है ना. Formality है. तो 3 into sin का स्क्वायर 25/221 minus 10 into sin a plus b
5 upon root 2 to 1 into cos a plus b, 14 upon root 2 to 1 minus 25 into cos square, 196 upon 2 to 1. शायद से सबके डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? 2 to 1, isn't it? और न्यूमरेटर में 75 माइनस 14 5 से 70 700 और ये वाला यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा क्या? 4 4 16 4 नहीं था, हाँ एक 4 कॉमन निकलेगा तो ये 100 हो जाएगा, माने ये 4900 शायद सर. इज दिस व्हाट वी गेट? ये क्या? अच्छा तो हमने एक 4 निकाला, इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 बन गया, तो 100 into 49 is 4900. Okay, it's time to use calculators. Okay. ये कितना होगा? 49 plus 7 56 है ना, minus 75 25 बचेगा 55 है ना. अल्टीमेटली माइनस 5525 अपॉन 221, ये जो भी रहेगा 5 टाइम्स होगा है ना. सॉरी 5 टाइम्स इन द सेंस कि इधर 5 है. अच्छा मोर इमेजिन ये 200 है, 200 into 5 1000 होता है, लेकिन यहाँ 5000 into 5 into कितना करना है? 200 into 5 into 5 25. So there is a possibility है ना, imagine approximate value, मानिए this is same as 5000 upon 200 something like this. 200 into 5 will give you 1000 into 5 करना है तो 5000, तो लगभग ये 25 होना चाहिए. देखते हैं 221 into 25 52 55 आगे, so answer is minus 25. ठीक है, so this was a nice question. tan a plus tan b, tan a tan b था, we had to find tan a plus b, और tan a plus b से sin a plus b, cos a plus b, right? Okay, let's move on to next question. Okay. If tan alpha by 2, tan beta by 2 are roots of 8x square minus 26x plus 15 is equal to 0, then we need to find cos alpha plus beta. Remember this question could have been tan alpha plus beta, cos alpha plus beta, sin alpha plus beta. It could have been anything. या tan alpha plus beta by 2, cos alpha plus beta by 2, sin alpha plus beta by 2. So multiple questions are possible here. So we'll do one thing. Say first question अगर होता find tan alpha plus beta by 2, second sin alpha plus beta by 2, और third cos alpha plus beta by 2, fourth tan alpha plus beta, fifth sin alpha plus beta, sixth cos alpha plus beta. We need to find all of this. Anyway, हम ये सारे फाइंड नहीं करेंगे, इसमें से एक दो हम फाइंड करेंगे, ठीक है. अच्छा तो इसके रूट्स है tan alpha by 2, tan beta by 2. तो पहला कंडीशन, therefore tan alpha by 2 plus tan beta by 2 is 26 upon 8 and tan alpha by 2 into tan beta by 2 is 15 upon 8. ठीक है, तो इमीडिएटली हम क्या फाइंड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से? tan हाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, isn't it? क्योंकि ये देखो अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 है, तो इसका फॉर्म अच्छा मानिए बेसिकली दिस सेम एज दिस, दोनों एक ही है. तो tan a प्लस b के फॉर्म में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अच्छा तो ये 26 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा
-7। अच्छा, तो ये -26/7। ये 24 26 7 ट्रिपलेट है शायद से। अच्छा एनीवे ये tan इसकी वैल्यू है। अच्छा तो ये तो मिल गया। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं क्या, sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इजीली। कैसे? अपने ट्रायंगल के हिसाब से, इसे tan की वैल्यू है, ये देखो tan नेगेटिव है। देखो यहाँ फंस गया क्वेश्चन में। इसी इट शुड हैव बीन वेरी क्लियर। एनीवे tan की वैल्यू है 26/7। तो ये कितना होगा ये आप फाइंड कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। तो देयरफॉर इससे आप sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वी कैन फाइंड। अच्छा इसमें भी देखो दो आंसर्स पॉसिबल है। कैसे? प्लस की माइनस, वो दो वैल्यूज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि tan नेगेटिव है, सो एंगल कुड बी, दिस एंगल कुड बी इन व्हिच क्वाड्रेंट? इज इट कुड बी इन सेकंड और फोर्थ। जब सेकंड में होगा तो sin पॉजिटिव, cos। जब फोर्थ में होता तो sin नेगेटिव, cos पॉजिटिव। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। बट एनीवे these were anyway bonus questions, so we'll directly switch over to tan alpha plus beta। अच्छा ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज वेरी गुड, थिंग्स गोना गेट वेरी इंटरेस्टिंग। you know think of alpha plus beta as theta। तो अपने पास है tan theta by 2 और अपने को निकालना है tan theta। हो जाएगा, माने एंगल डबल। अगर एंगल डबल होना चाहिए तो डबल एंगल फॉर्मूला ही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली tan 2 थीटा वाला। देखो tan थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस, इज दिस ये फॉर्मूला लगेगा ना। लेकिन थीटा इज एक्चुअली अपने हिसाब से अल्फा प्लस बीटा। tan थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके तो 2 इसका वैल्यू आया -26/7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर, नीचे 49, 26 का स्क्वायर 676। नाउ डिनोमिनेटर में -6, अच्छा न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आगे न्यूमरेटर अच्छा जो भी होगा नेगेटिव होगा वो भी है ना। अच्छा 49 है तो 49 कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7। तो अल्टीमेट हमको फाइंड करना है 2 26 into 7, 26 2 52 into 7, so it is 40 364, is it? So basically this is 364/627। ये किसकी वैल्यू है? tan alpha plus beta। we need to find the value of cos alpha plus beta। okay now this is where things get tedious है ना। अच्छा ये देखो ये tan की वैल्यू है और tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव होता है दो क्वाड्रेंट्स में, tan इज पॉजिटिव इन बोथ क्वाड्रेंट्स। अच्छा क्या है कि दो वैल्यूज पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। एनीवे 364 ऑपोजिट साइड है ना, और 627 इज एडजेसेंट साइड। नाउ वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। क्या बस गया है ना। ओके ये देखो 7 7 49, 4 4 16, तो यूनिट्स प्लेस में क्या आ रहा? 5 आ रहा। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये कोई इसके न्यूमरेटर सॉरी इसका व्हाट इज इट यूनिट्स प्लेस में 5 हो जाए। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो आप गेस कर सकते हैं ऑप्शंस देख के, ठीक है। सो विद द आंसर आई हैव दिस शुड कम आउट 725, राइट? दिस शुड कम आउट 725। तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड cos alpha plus beta here। तो cos alpha plus beta is 627/725
and it should be plus minus. Why plus minus? क्योंकि we do not know, है ना, अल्फा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है. ओके, तो दिस सडनली मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बिग नंबर्स. बट लेकिन क्या है कि ये आइडिया इंपॉर्टेंट है. ओके, एनीवे कैलकुलेशन पार्ट तो रहेगा, वी कैन नॉट हेल्प दिस थिंग. सो पॉइंट इज कि हाफ एंगल को डबल में कन्वर्ट करना है. रिमेंबर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंड है. हाफ एंगल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा और स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करना. सो सिमिलरली क्यूब ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट होता है. क्यूब गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल एंगल. ठीक है, सो दीस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम. अच्छा, साइन का वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं, वो भी प्लस माइनस 364 अपॉन 725. ठीक है, नाउ दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन based on quadratic है. Question number 13. If alpha and beta are roots of k plus 1 into tan square x, k plus 1 into tan square x minus root 2 lambda into tan x is equal to 1 minus k, right? And tan square alpha plus beta, okay, हो जाएगा क्वेश्चन, है ना. ये देखो, ये वैल्यू है अपने पास और ये अपन पता कर सकते हैं यहाँ से. देन lambda is equal to, then we need to find the values of lambda. Pretty much global question this one. Okay, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस. अच्छा, पहली बात, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के टर्म्स में है क्या? इज दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट? इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इट? फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. कैसे? अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. ax² bx c, ये कांस्टेंट टर्म है. अच्छा, इसके रूट से अल्फा बीटा, माने रिमेंबर रूट्स का मतलब x की वैल्यूज, है ना. रूट्स का मतलब x की वैल्यूज. x की वैल्यू है अल्फा, x की वैल्यू है बीटा. लेकिन ये क्वाड्रेटिक x के टर्म्स में है क्या? ये क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में है? tan x के टर्म्स में. इसका मतलब ऑब्वियसली इसका रूट्स आर tan अल्फा tan बीटा. आया समझ में? जनरली रूट्स का मतलब x के वैल्यूज होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली x में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है tan x के टर्म्स में. माने एक्चुअली द रूट्स आर tan अल्फा tan बीटा. सो ऑब्वियसली tan alpha plus tan beta we can find. Sum of the roots is minus b by, sorry, minus gets cancelled, and c by a, sorry, tan alpha into tan beta. ये c upon k minus of 1 minus k upon k plus 1. अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इसे तो just write it as k minus 1 upon k plus 1. Is it? अपने पास किसका वैल्यू है? tan alpha plus beta का स्क्वायर. सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग वी विल बी डूइंग? वी फाइंड tan alpha plus beta. What is tan alpha plus beta? Tan alpha tan beta upon, sorry, tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. So k minus 1 upon k plus 1. Root 2 lambda upon k plus 1 whole divided by, ये देखो, k plus 1 minus of k minus 1, isn't it? Actually k is cancelled. ओके, पूरा k कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा है बेसिकली लैम्डा अपॉन रूट 2. ये तो है, लेकिन अपने पास वैल्यू है tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का, वो है 50. तो इसका स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 2 इज 50. तो लैम्डा स्क्वायर इज 100, माने लैम्डा इज प्लस माइनस 10. ठीक है. सो now this was an easy question, isn't it? Now that we have solved many questions based on, you know, tan alpha tan beta roots, ये तो एकदम कॉमन है, कॉमन क्वेश्चन है. कभी कभी बार अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2,
फिर tan अल्फा प्लस बीटा निकालो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी 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 कॉमन इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, so these are set of questions based on quadratic and cubic and trigonometry। ठीक है, बस अपना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बाकी है, वो हम कल वाला क्लास में कवर करेंगे। राइट, सो बाय।